welcome back to my channel. So today we are going to discuss now chapter number 5 of your algebra, that is orthogonal and unitary matrices. Now first let us discuss what is an orthogonal matrix. A square matrix over the field of real is said to be orthogonal if A into A transpose and A transpose into A is your identity. अगर हमारे पास A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. Orthogonal matrices are of two types. First is proper orthogonal. Next is improper orthogonal. Proper orthogonal are those matrices whose determinant of the matrix is your 1. इसका determinant हमारे पास matrix का क्या आता है? 1 आता है. 0 नहीं 1 आएगा. Improper उनको बोलेंगे जिसका determinant हमारे पास क्या आता है? -1. These are two types of orthogonal matrices. Now let us discuss example. Suppose हमें ये एक matrix दे रखी है A and we have to check whether it is orthogonal or not. So इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 1 1 0. Now A into A ट्रांसपोज करते हैं. So आ जाएगा 0 1 1 0 into 0 1 1 0. So इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 1 0 0 1. So ये मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. So A into A ट्रांसपोज क्या है? आइडेंटिटी. Therefore this matrix is your orthogonal matrix. Next are the properties of the orthogonal matrix. What are the properties? First property, determinant of the orthogonal matrix is plus minus 1. Now let us suppose we have a matrix A which is your orthogonal. So it will satisfy the condition A into A transpose is equal to identity. Taking determinant both sides, you will get A determinant into A transpose determinant is equal to determinant of identity. So we know that determinant of A is equal to A transpose का determinant. So from here we can write A determinant का square is equal to 1. So from here we can write A determinant is equal to plus minus 1. Next is product of two orthogonal matrices of same order is also orthogonal. Now let us suppose we have A matrix which is orthogonal and B matrix which are both your orthogonal. So both are orthogonal, so we can write A into A transpose is equal to identity, that is equal to A transpose into A, and we can write B into B transpose is equal to B transpose into B is equal to identity. Now consider their product AB transpose into AB. अगर ये भी हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी जो है वो ऑर्थोगोनल है. सो देखिए इसका ट्रांसपोज खोलते हैं. B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A into B. So A into A transpose आइडेंटिटी आ जाएगा. So B transpose into identity is equal to B. This formula is equal to identity. मतलब कोई मैट्रिक्स है ये उसका ट्रांसपोज और उनकी प्रोडक्ट 1 आ रही है मतलब आइडेंटिटी आ रही है. Therefore this matrix AB is your orthogonal. Next property is the inverse and the transpose of the orthogonal matrix are orthogonal. So suppose A एक हमारे पास orthogonal matrix है. So A into A transpose should be equal to the identity. For proving the inverse is also orthogonal, taking inverse both sides. So when we take inverse, so A into A transpose का inverse is equal to identity का inverse. That will be A transpose का inverse into A inverse is equal to identity. क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स हमारे पास क्या होता है? सिंपल आइडेंटिटी होता है. मैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स इनटू ट्रांसपोज A इनवर्स इनटू आइडेंटिटी. लेट अस सपोज कि A इनवर्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स है C. सो C ट्रांसपोज इनटू C हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है. इसका मतलब जो C मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है. इसका मतलब जो A इनवर्स है यहाँ पे वो क्या है हमारे पास? ऑर्थोगोनल. अगर यहाँ पे C की एक ट्रांसपोज की जगह हम यहाँ पे C पुट करें इनवर्स की जगह तो देखिए C ट्रांसपोज इनटू C आइडेंटिटी आ रहा है. यही कंडीशन हमारे पास क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होती है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज देखना है. तो ट्रांसपोज के लिए टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स. सो इस कंडीशन में ट्रांसपोज लेते हैं साइड. सो A इनटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज. तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज क्योंकि रिवर्स टू द ट्रांसपोज आ जाएगा आइडेंटिटी. आ जाएगा A इनटू A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी. तो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल की. Therefore this matrix is also orthogonal. कि ट्रांसपोज लेंगे तो भी हमारे पास क्या रहेगी? ऑर्थोगोनल रहेगी. Now next type of matrix हमारे पास आता है यूनिटरी मैट्रिक्स. A square matrix over the field of complex.
कॉन्जुगेट इनटू ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसका मीनिंग हमारे पास ये होता है। सो हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी है या नहीं। तो पहले हम इसका ए डैश फाइंड आउट करते हैं। ए डैश मतलब ए कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। क्या होता है बेसिकली जो आयोटा वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज होता है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। नाउ हम क्या फाइंड आउट करते हैं a into a थीटा। तो एक ट्रांसपोज का कंजुगेट एक कंजुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है हमारे पास a थीटा के। सो a की वैल्यू आ चुकी है और a थीटा की वैल्यू आ चुकी है। दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं आइडेंटिटी आ रहा है नहीं आ रहा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 0 0 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस है तो 1 0 0 1। अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि अ रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ इट इज ऑर्थोगोनल। इफ का मीनिंग है बोथ साइड्स हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि यूनिटरी है तो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है तो यूनिटरी। रियल मैट्रिक्स की बात करें। सो रियल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या कंडीशन होती है A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A होती है। अब हम बात करते हैं इज यूनिटरी, हमें प्रूफ करना ऑर्थोगोनल। सो यूनिटरी है तो a into a थीटा इज इक्वल टू a थीटा into a शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स हमें दे रहा है इनका बोथ ऑफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a थीटा इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। तो a थीटा a ट्रांसपोज के बराबर से हम पुट करते हैं a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज into a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये कंडीशन हमारे पास किसकी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होती है। सो हेंस हमने लेके चला कि यूनिटरी और हमें प्रूफ करते हैं कि ऑर्थोगोनल है ये रियल मैट्रिक्स। अब हम लेके चलते हैं कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। तो a into a ट्रांसपोज हमारे पास किससे इक्वल होगा आइडेंटिटी। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो रियल है। तो रियल है तो मतलब a कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल होगा a के। इसका ट्रांसपोज ले तो a थीटा a ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम a ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करते हैं a थीटा। सो a into a थीटा इज इक्वल टू योर आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। सो यूनिटरी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज हमें प्रूफ करना है यूनिटरी। सो a कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है। सो a into a थीटा इज इक्वल टू a थीटा into a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। चाहे आप ये वाला पार्ट प्रूफ कर लो चाहे ये वाला पार्ट प्रूफ कर लो। तो हम ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं कि a थीटा into आइडेंटिटी। यहाँ से जो a मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो होगा वो यूनिटरी होगा। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड विल गेट a into a थीटा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ट्रांसपोज रिवर्स खुलता है ड्यू टू रिवर्सल लो। सो यहाँ आ जाएगा ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं a ट्रांसपोज into थीटा into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नाउ लेट a ट्रांसपोज इक्वल टू c। सो आ जाएगा c थीटा into c इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका क्या मीनिंग है कि c थीटा into c इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यूनिटरी मैट्रिक्स में यही तो कंडीशन होती है हमारे पास कि a into a थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो c थीटा into c इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब c जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है यूनिटरी है और c क्या थी a ट्रांसपोज, मतलब a ट्रांसपोज हमारे पास क्या है यूनिटरी है। इसका क्या मीनिंग है कि आप a मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कीजिए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर a मैट्रिक्स अगर हम यूनिटरी दे रखे ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा यूनिटरी, उसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा यूनिटरी। कॉन्जुगेट के लिए प्रूफ देखते हैं बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए हमें प्रूफ करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। सो लेट A be a unitary matrix so it will satisfy the condition a into a theta is equal to identity. I'm taking transpose conjugate both sides. So we will get a into a theta का ट्रांसपोज कंजुगेट into I theta। तो आ जाएगा a थीटा का थीटा मतलब उल्टा होता है। आ जाएगा a थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी का थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी ही रहेगा। तो आ जाएगा a ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या देखो a थीटा को आप लेट कर लीजिए c मैट्रिक्स। तो आ गया c थीटा into c इज इक्वल टू आइडेंटिटी। So from this condition we know that c is unitary और c क्या था हमारे पास a थीटा। So a थीटा is unitary। चलो आप इसको चेंज कीजिए c में या ना कीजिए, यहाँ से भी स्पेसिफाई हो रहा है कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो भी हमारे पास क्या आता है यूनिटरी आता है।
थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप ट्रांसपोज मेंशन कर लीजिएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कंजुगेट लिया है, कंजुगेट वाला दूसरा प्रूफ हो जाएगा इसका। The next property we have conjugate of a unitary matrix is unitary. Let A be a unitary matrix, so A into A theta is equal to your identity. Conjugate लेना उसको मैंने ट्रांसपोज कंजुगेट ले लिया था, यहाँ पे conjugate लेंगे both sides, so we'll get A into A theta का conjugate is equal to identity. फिर आ जाएगा A conjugate into A theta का conjugate is equal to your identity. conjugate है वो हमारे पास रिवर्सल नहीं होता, रिवर्सल को फॉलो नहीं करता। आ जाएगा A conjugate into A conjugate का थीटा लिख लेते हैं इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो लेट A conjugate इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स C, C into C थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये C मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो C हमारे पास क्या था, A conjugate, सो A conjugate हमारे पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इससे प्रूव होता है कि conjugate ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। इन सभी क्वेश्चन में सेम टाइप है, इनवर्स के दोनों साइड इनवर्स लेना पड़ेगा। Taking inverse both sides, so we get A theta inverse is equal to identity inverse. So we get A theta inverse into A inverse is equal to identity. तो आ जाएगा A inverse into theta into A inverse is equal to identity. Now let A inverse is equal to C. So C theta into C is equal to identity. Meaning यहाँ पे C मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या आपको बोला था कि A inverse हमारे पास क्या है, यूनिटरी। Next is product of two unitary matrices is unitary. Let us suppose we have let A and B be two unitary matrices. Suppose कर लेते हैं हम A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जो कि हमारे पास यूनिटरी हैं। अगर A और B यूनिटरी हैं तो यूनिटरी की कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। क्या कंडीशन आएगी, A into A theta is equal to identity, that is equal to A theta into A. B भी अगर यूनिटरी है so B into B theta is equal to identity, that is equal to B theta into your। now हम चेक करते हैं कि A B into A B का थीटा पे जो है आइडेंटिटी आना चाहिए और A B थीटा into A B क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। इस कंडीशन को मैं प्रूफ कर देती हूँ, उससे वाले अपने आप प्रूफ हो जाएगी। क्या आप करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला हम कर लेते हैं A B into क्या आ जाएगा, B थीटा into A थीटा is equal to B into B थीटा हमारे पास क्या होता है, यहाँ दे रखा है आइडेंटिटी है, इससे आ जाएगा A आइडेंटिटी into A थीटा, that is equal to A into A थीटा, that is identity। so इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, therefore the product is also a unitary matrix। product is unitary। next we have determinant of a unitary matrix is absolute one। जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, हमारे पास एब्सोल्यूट वन। सो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो A into A theta should be equal to identity, taking determinant both sides, A into A theta का determinant is equal to identity। तो A का determinant इसको हम लिख सकते हैं A conjugate transpose is equal to identity। since we know that A का determinant हमारे पास A transpose के determinant की जो वो इक्वल होता है, ये दोनों बार हमारे पास इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A into A conjugate हो गया आइडेंटिटी। सो लेट A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू Z, सो Z into Z conjugate हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब मोड ऑफ Z है वो 1 है, मतलब मोड ऑफ A हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आएगा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था कि Z into Z हमारे पास जब 1 आता है, यहाँ पे डिटरमिनेंट लेंगे ना तो यहाँ पे 1 आएगा। नाउ प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स के वो यूनिट मॉडुलस के हैं। अगर A हमारे पास कोई
discuss the examples. First example is verify that matrix A is proper orthogonal. पहले हम ये verify करते हैं कि orthogonal है या नहीं. So for orthogonal we have the condition A into A transpose should be equal to identity. So we have the matrix A that is 12, 13, minus 5 by 13, 5 by 13, 12 by 13. A transpose हमारे पास हो जाएगा 12 by 13, 5 by 13 minus 5 by 13, 12 by 13. तो इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 plus 25 that is 169 by 169 that is 1. नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा 0, नेक्स्ट में आ जाएगा 0 एंड नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास 1. सो इनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है. देयरफॉर A इज ऑर्थोगोनल. अब हमें प्रूव करना है प्रॉपर ऑर्थोगोनल, तो इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं A मैट्रिक्स का. अगर 1 आ जाता है इसका मतलब वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल है. से आ जाएगा हमारे पास 144 plus 25 by 169 that is 1. Hence it is proper orthogonal. और improper के लिए डिटरमिनेंट हमारे पास -1 आना चाहिए. Next is if A is a real skew symmetric matrix. So A is equal to minus A transpose according to definition of skew symmetric. Such that A square plus I is equal to 0. Then you have to prove that A is orthogonal and is of even order. So हमें ये दे रखा है. So हमें प्रूफ करना है कि A into A transpose जो है वो आइडेंटिटी आना चाहिए. So A into A transpose की बात करते हैं. A transpose को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ A. तो माइनस ऑफ A से आ जाता है हमारे पास माइनस ऑफ A स्क्वायर. और इस रिलेशन से हम माइनस ऑफ A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी. तो ये हमारे पास आ चुका है आइडेंटिटी के इक्वल. इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास जो A है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है. तभी आइडेंटिटी के इक्वल है. अब हमें प्रूफ करना है कि इवन ऑर्डर का है. सो हमें ये बात पता है A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज. टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड से आ जाएगा माइनस m की पावर n A ट्रांसपोज. वी नो दैट A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट. सो ये हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस m की पावर n इनटू A डिटरमिनेंट. तो A डिटरमिनेंट कैंसिल, 1 इज इक्वल टू माइनस m की पावर n. तो तभी आएगा हमारे पास जब n जो है वो इवन होएगा. अगर ऑड होएगा तो हमारे पास -1 is equal to -1 आ जाएगा, which is not true. So जब इवन आएगा तभी दोनों पार्ट्स इक्वल आएंगे. So n is even. Next is if A and B are two non-singular matrices of same order such that A into A transpose is equal to B into B transpose, show that there exists orthogonal matrix P such that this. अब हमें प्रूव करना जो P है वो ऑर्थोगोनल है. तो देखिए हमारे पास ये रिलेशन है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, B inverse A is equal to B. हमें प्रूव करना है P into P transpose is equal to I. This we have to prove. Now अब हम लेके चलते हैं P into P transpose. So हम P into P transpose को लेके चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा B inverse A into B inverse A का ट्रांसपोज. तो ये आ जाएगा B inverse into A, ये आ जाएगा A transpose, ये आ जाएगा B inverse का ट्रांसपोज. So A into A transpose को हम क्या लिख सकते हैं, B into B transpose. So B into B inverse cancel, B inverse क्या ये बात यहाँ B ट्रांसपोज है ना. देखिए A to A ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं B into B ट्रांसपोज. इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए B ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज का इनवर्स. सो इन मैट्रिक्स सोल्व का इनवर्स ये भी कैंसिल. तो हमारे पास ये फाइनल आ चुका आइडेंटिटी. देयरफॉर P इज ऑर्थोगोनल. Hence we have proved it. Now let us see example number 4. If A is orthogonal matrix and if B is equal to AP and if P is non-singular, we have to prove that PB inverse जो हमारे पास orthogonal रहेगा. So हमें दे रखा है B is equal to AP. So यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, B inverse क्या हो जाएगा हमारे पास, P inverse A inverse. ये हमें inverse चाहिए. So PB inverse हमें orthogonal proof करना है. इसका मतलब PB inverse into TP inverse का transpose should be equal to identity. This we have to prove. तो हम इस पार्ट को लेके चलते हैं. So P into B inverse ये उल्टा खुलेगा, that is B inverse का ट्रांसपोज is equal to into B transpose is equal to हम प्रूफ करना है आइडेंटिटी. So यहाँ से हम B inverse की वैल्यू पुट करेंगे P inverse A inverse. तो ये आ जाएगा P inverse A inverse. यहाँ पे पुट करेंगे P inverse A inverse का ट्रांसपोज into P transpose. तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. ये हमारे पास आ जाएगा A inverse, अपोजिट खुलेगा ट्रांसपोज तो आ जाएगा A inverse का ट्रांसपोज
इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू पी ट्रांसपोज। सो ये पी ट्रांसपोज है, पी ट्रांसपोज का इनवर्स ये भी कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा ए इनटू ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये पार्ट आ चुका है हमारे पास। अब हमें पता है ए जो है वो ऑर्थोगोनल है, अगर ए ऑर्थोगोनल तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होएगा। तो उसको हम इस टाइप से लिख लेते हैं माइनस इनवर्स ट्रांसपोज। सो ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। सो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी। हेंस PB इनवर्स इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम शो करना है ए, सपोज ये मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल, जब ए हमारे पास ये होएगी कंडीशन ये है, अगर ए ऑर्थोगोनल है सो ए इनटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। सो वी हैव A B C D इनटू A B C D। सो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा AC प्लस BD, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास AC प्लस BD, ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पार्ट को आइडेंटिटी प्रूव करना है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास 1 होना चाहिए। AC प्लस BD इज इक्वल टू 0 मीन्स AC इज इक्वल टू माइनस ऑफ BD। तो यहाँ से क्या कंडीशन आती है हमारे पास, यहाँ से कंडीशन आती है या तो C माइनस B के इक्वल होएगा A D के, या फिर A इक्वल होएगा माइनस B के। यहाँ से कंडीशन बनती है कि D इक्वल होएगा माइनस A के और B इक्वल होएगा C के। ये कंडीशन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स दिख रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ C के C इक्वल चाहिए माइनस B के, तो ये कंडीशन बनेगी, और यहाँ पे मुझे C के C इक्वल चाहिए B के, तो ये कंडीशन बनेगी। तो दो कंडीशन आएंगी तभी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल बनेगी। अगर ये कंडीशन होती है, एक तो ये कंडीशन आएगी ये होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो हमारा मैट्रिक्स है इस टाइप का होना चाहिए, याद आएगा 1। सो यहाँ पे A B C जो मैट्रिक्स है, अगर मैं C की जगह फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग रखूँ माइनस B, यहाँ आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा A B, तो A मैट्रिक्स C बनेगी। दूसरी कंडीशन से क्या मैट्रिक्स बनेगी, इस कंडीशन से यहाँ आ जाएगा माइनस है, यहाँ C, यहाँ आ जाएगा A B। सो अगर ये दोनों टाइप हमारे पास A होगा तभी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल बनेगी। अब हम लेके चलते हैं कि ये दोनों कंडीशंस हैं, इफ एंड ओनली, मतलब हमें दोनों साइड से प्रूव करना है। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स A ये दे रखा है, या फिर A B D माइनस है, और हमें एक कंडीशन दे रखी है। अब हमें प्रूव करना है कि जो A मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होगी। अगर हमें प्रूव करना है जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होगी, तो हम कंडीशन ले लेते हैं A into A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A into A ट्रांसपोज हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AC प्लस BD AC प्लस BD C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैल्यू, अब हमें ये दे रखे इससे प्रूफ कर देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, AC इज प्लस BD। सो यहाँ से हम देखो कंपेयर करें तो यहाँ से हम C को क्या पुट कर सकते हैं माइनस D, और हम A को क्या पुट कर सकते हैं D। तो यहाँ पे हम C को जो माइनस B पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस BC प्लस BD। एक मिनट, ठीक है, जब यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम मान पुट करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन है, यहाँ से हमारे पास है C इज इक्वल टू माइनस B और A इज इक्वल टू D। देखिए अब यहाँ पे C को अगर मैं माइनस B में चेंज कर दूं तो आ जाएगा माइनस AB, ठीक है, और यहाँ पे मैं D को अगर A में चेंज कर दूं तो आ जाएगा BA, तो मेरे पास 0 बन जाएगा यहाँ पे। अगर आपको बात समझ आई तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए दोबारा ये वाला पार्ट में 0 बन जाएगा। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की बात करते हैं, C स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस B का स्क्वायर, D स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ A का स्क्वायर, तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो हमारे पास 1 है। इसका मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब A जो है वो ऑर्थोगोनल है। सिमिलरली आप इस कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं। अब हमने पहले यहाँ पे सिंपल प्रूफ किया था और यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, इसका कन्वर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। हम इसको करने हैं मैट्रिक्स यूनिटरी और फिर A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यूनिटरी तो आई होप आपको पता है यूनिटरी की कंडीशन होती है A into A थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। A थीटा को निकालने के लिए आप पहले कॉन्जुगेट कीजिए फिर ट्रांसपोज कीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं A ट्रांसपोज कीजिए फिर कॉन्जुगेट कीजिए, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, देखिए वो आइडेंटिटी आएगी। अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, A थीटा इज इक्वल टू A इनवर्स। जो आप A थीटा फाइंड आउट करेंगे वही आपका इनवर्स होगा। तो आप ये क्वेश्चन जो खुद ट्राई कीजिएगा, ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। नाउ लेट अस सी
एग्जांपल नंबर 7, इफ ए यूनिटरी, इफ मतलब दोनों साइड से प्रूफ करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। सो अगर हमारे पास a यूनिटरी है, सो a into a थीटा शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। सो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, a थीटा फाइंड आउट करते हैं। a थीटा हमारे पास क्या होगा, पहले इसका हम ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो पहले कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो a माइनस आयोटा c माइनस b माइनस आयोटा d, b माइनस आयोटा d, a प्लस आयोटा c। सो a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हुए हमारे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा c माइनस b माइनस आयोटा d, b माइनस आयोटा d, a प्लस आयोटा c। सो a इंटू a थीटा फाइंड आउट करते हैं, दैट इज a हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा c माइनस b प्लस आयोटा d, b प्लस आयोटा d, a माइनस आयोटा c इंटू a थीटा, वो आ जाएगा a माइनस आयोटा c, b माइनस आयोटा d माइनस b माइनस आयोटा d। इनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए, तो ये ऑर्थोगोनल होंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा डी a प्लस आयोटा c। इनके प्रोडक्ट करते हैं, इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, देखिए पूरा करते हैं, a प्लस आयोटा c इंटू a माइनस आयोटा c माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस b प्लस आयोटा d इंटू माइनस b माइनस आयोटा d। देखिए a प्लस b, a माइनस b तो होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर c स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली इसमें a प्लस b, a माइनस b, सो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस आयोटा d का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, अब हम इनके प्रोडक्ट करते हैं, a प्लस आयोटा c इंटू b माइनस आयोटा d प्लस माइनस b प्लस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा c। तो ये आ जाएगा a b प्लस b आयोटा c माइनस a आयोटा d प्लस c d माइनस a b प्लस a आयोटा d माइनस b आयोटा c माइनस c d। तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब हमें कंडीशन दे रखा है कि ये हमारे पास क्या है ना, दिस इज 1 0 0 इफ वी हैव दिस कंडीशन, ये तो हमारे पास था मेन। अब इसका बात करते हैं कन्वर्स। अगर हमें ये पार्ट दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? अगर हमें आइडेंटिटी दे रखा है, अच्छा देखिए इस पार्ट में a into a थीटा हमें दे रखा है यूनिटरी है, यहाँ से हमें क्या दे रखा है, देखिए एक बार मुझे a into a थीटा हमें दे रखा है कि यूनिटरी है, मतलब आइडेंटिटी के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 1 के इक्वल होएगा। सो ये कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट पार्ट में। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है, तो इस स्टेप के बाद हमें कंडीशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 1, देयरफॉर ये यूनिटरी बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 8, शो दैट if A is a Hermitian and P is unitary, we have to prove this is Hermitian. So A Hermitian है तो A is equal to A theta आ जाएगा, P unitary है तो P into P theta हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। हमें प्रूव करना है कि ये Hermitian है। तो यहाँ से देखिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से P इनवर्स हमारे पास आ जाएगा P theta के इक्वल इस पार्ट से। सो हमें प्रूव करना है P इनवर्स A P Hermitian, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो हम ये लेके चलते हैं। तो P इनवर्स A P ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, आ जाएगा p थीटा a थीटा इनटू p इनवर्स का थीटा। सो यहाँ से हम p थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, p इनवर्स, तो p इनवर्स a थीटा को हम a पुट कर देते हैं, p इनवर्स को हम p पुट कर देते हैं। सॉरी इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, p थीटा इनटू इनवर्स, तो हमारे पास आ जाएगा p इनवर्स इनटू a इनटू p थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, p इनवर्स, तो p इनवर्स का इनवर्स, तो आ जाएगा p इनवर्स a into p। देयरफॉर ये पार्ट दोनों इक्वल आ चुके हैं, देयरफॉर इट इज हर्मिटियन। हमने क्या किया, पहले इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, फिर यहाँ p थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, p इनवर्स। सिमिलरली यहाँ पे इसको p थीटा के p थीटा को पुट कर दिया p इनवर्स, तो हम देखा जो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट है वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, देयरफॉर द कंडीशन ऑफ हर्मिटियन इज सैटिस्फाइड, देयरफॉर द मैट्रिक्स इज हर्मिटियन।
Now let us see the last example. So now let us see the last example, example number 9. हमें इसमें दे रखे A is a skew Hermitian. तो skew Hermitian में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, A is equal to minus A theta, और हमें दे रखे A minus I जो नॉन स्क्यू वगैरह, इसका मतलब इसका इनवर्स जो पॉसिबल है. हमें शो करना है कि P जो है वो ये है और यूनिटरी है. सो हमें बेसिकली शो करना है कि P is यूनिटरी. यूनिटरी के लिए हम क्या करेंगे, P into P थीटा को आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे. पहले हम यहाँ पे P थीटा फाइंड आउट करते हैं. सो P हमें ये दे रखा है, इसका थीटा करना है. से आ जाएगा A प्लस आइडेंटिटी इंटू A माइनस आइडेंटिटी का इनवर्स का थीटा. तो ट्रांसपोज कंजुगेट उल्टा खुलता है तो आ जाएगा A माइनस I का इनवर्स का थीटा इंटू A प्लस I का थीटा. सो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A इनवर्स जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, थीटा को अंदर लिख लेते हैं, इनवर्स को बाहर लिख लेते हैं. से आ जाएगा A माइनस, किस स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, इंटू A प्लस I की पावर थीटा. थीटा को अंदर ले जाते हैं. सो A थीटा माइनस आइडेंटिटी की पावर थीटा का इनवर्स इंटू A प्लस आइडेंटिटी का थीटा. सो A थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस A. सो माइनस A और आइडेंटिटी का थीटा मतलब सिंपल I माइनस इनवर्स A प्लस आइडेंटिटी का थीटा. तो यहाँ हमारे पास माइनस कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा A प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स. सिंपली यहाँ पे भी थीटा मिल जाते हैं, A थीटा प्लस आइडेंटिटी का थीटा आ जाएगा आइडेंटिटी. तो आ जाएगा माइनस ऑफ A प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स. A थीटा को पुट करेंगे माइनस A प्लस आइडेंटिटी. यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो A प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस आइडेंटिटी. अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो P इंटू P थीटा हम आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करते हैं, या P थीटा इंटू P भी कर सकते हैं. तो देखिए ये हमारे पास P थीटा की वैल्यू है. सो A प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स इंटू A माइनस आइडेंटिटी, और B की वैल्यू क्या है हमारे पास, A प्लस आइडेंटिटी इंटू A माइनस आइडेंटिटी का इनवर्स. हमें प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा. तो देखिए हम क्या करते हैं, A प्लस आपकी बुक में P थीटा इंटू P का रखा है, आपको P इंटू P थीटा बता दें. इनवर्स है दोनों तरफ से, आप इसको अंदर इस साइड से लिख सकते हैं A प्लस आइडेंटिटी इंटू A माइनस आइडेंटिटी इस पूरे का इनवर्स. क्योंकि जो इनवर्स है उल्टा खुलता है, इसका मतलब ये वाला पहले आएगा फिर ये वाला बाद में, इंटू A माइनस आइडेंटिटी. फिर हम प्रोडक्ट करते हैं, आ जाएगा A प्लस आइडेंटिटी. जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. देखिए चाहे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कीजिए, चाहे इस वाले की प्रोडक्ट इसके साथ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया. क्यों लिखा आप ही देखते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस आइडेंटिटी. देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ देखिए दोबारा, ये दोनों का इनवर्स था ना, तो मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया A प्लस आइडेंटिटी, सॉरी A माइनस आइडेंटिटी लिखा जाएगा यहाँ, इंटू A प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स. इस टाइप से मैंने इसको लिख लिया. तो देखिए अब जब इसको ओपन अप करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस आइडेंटिटी इंटू A माइनस आइडेंटिटी का इनवर्स. क्योंकि इन दो को प्रोडक्ट करेंगे, A इंटू B कीजिए चाहे B इंटू A कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स इंटू A माइनस आइडेंटिटी का इनवर्स इंटू A माइनस आइडेंटिटी. सही है, हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी. Therefore हमें ये प्रूफ करना था कि आइडेंटिटी आएगा. So by this chapter 5 is completed. In the next video we will